Another question, Dr. Deepti, is see, I have been seeing domestic helpers complaining with the stomach upset, constipation, or diarrhea, but that's the only thing they are having. This is not related to pregnancy here, but I have a doubt for women, those who are having only diarrhea or constipation or prolonged one. So, but that's the only thing. So, is it also a symptom of COVID, or it's just a normal, regular problem? It could be, and very strange. That's why I said in the beginning, the women are very special, and in the pregnancy, they are becoming more special, right? So their symptoms are also special because everything changed, because the whole nature tried to, the whole body work toward that child. It's not work for the female at all. The moment अब जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है ना, वो बच्चा ना सेल्फिश हो जाता है, पूरी बॉडी और पूरी कायनात जो है ना उसके तरफ हो जाती है. ओके, सो द सेम टाइम, उसी टाइम पे उसका जो जीआई ट्रैक्ट है वो भी थोड़ा अजीब सा एक्ट करने लगता है. शी स्टार्ट हैविंग द सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन व्हिच इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी. नाउ द कोविड हैज दिस काइंड ऑफ अ सिम्टम आल्सो. It's very unusual, and in that case it could be possible that the RT-PCR may come as a negative. Okay, that is possible because of the way the strains is changing, the mutation is starting, and it is very I would say that it is not uncommon to get this kind of a symptom. So if you have that symptom, just do one thing: self-isolate and monitor. I am not going to treat you. We are not treating you. We just want to monitor you. That's it. We will treat once needed. Monitoring, self-isolation. That's it. Monitoring with the pulse rate and the fever, right? Yeah, pulse oximeter and the fever, temperature. 2 things I need. That's it. And this isolation involves opening a window, because few people have this. Very important it is. Yeah. Go ahead. Yeah, opening a window is very much in the isolation, is it? Yeah, the reason is that like 2-3 months, till 2-3 months back, we were discussing, and we were the whole research was just pointing toward that it is a droplet infection. However, the recent Lancet, the very famous medical journal, has already so जो recent journal है उसने already ये कह दिया है कि ये एयरबॉर्न है, राइट? एंड इफ इट इज एयरबॉर्न, वी नीड टू दैट हमारे घर का हवा जो है वो चेंज होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि वो घर में घूमता रहेगा. एंड दे आर सम वल्नरेबल कुड बी एट योर होम का, जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं. तो घर की हवा को बदलना है. एंड एनी फ्लू इन्फेक्शन जो है ना, अगर हम हिस्ट्री में जाएं और हम पिछले फ्लू से अगर हम कुछ लेसन लर्न करें, तो हम ये कह सकते हैं जब उनका सन से एक्सपोजर हुआ था तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई थी. तो इसीलिए हम इसको भी एडवाइस करते हैं कि जो वेल वेंटिलेटेड घर होते हैं वहां पे इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है, वेल वेंटिलेटेड में. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी डिजीज में जो एयरबॉर्न है, ट्यूबरक्लोसिस. सो ट्यूबरक्लोसिस उस घर में कम होती है जहां वेंटिलेशन ज्यादा होता है. सिमिलरली हम इसमें भी कह सकते हैं वेल वेंटिलेटेड हाउस. तो अगर आप सेल्फ आइसोलेटेड है, आपके विंडोज खुले होने चाहिए, आपकी घर की हवा बदलती रहे. डोंट जस्ट टेक दैट थिंग. That's a very good point. And now, if supposing I had this anxiety, I went for a test and I'm positive, then what is the impact now? Don't get panic. Not to be panic. It's very common. You will get. I have seen, people they fainted just the moment they have seen report देखा और faint हो गए. तो ये भी है, और ये बहुत डरावनी सी बीमारी है एक्चुअली. हमको ये लगता है कि बस हो गया तो बस मर गए. नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच जाएंगे. बट अगेन द पल्स ऑक्सीमीटर एंड द थर्मामीटर इज द थिंग विच यू नीड नाउ. एंड अब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई. अब आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, आपको अपने साथ घर वालों को भी ध्यान रखना है. प्लीज किचन में ना जाए, प्लीज कुकिंग ना करें, पर मूव करते रहें. खासकर प्रेग्नेंट लेडीज और जो 6 वीक्स पोस्टपार्टम यानी लैक्टेटिंग मदर है, वो भी मूव करते रहे, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी में ना ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है. और ये कोविड भी थोड़ा सा गंदा सा है, ये भी क्या करता है, ब्लड को थोड़ा स्टिकी कर देता है. तो इसलिए आप पानी पीते रहें, वेल हाइड्रेटेड, एंड मूव ऑन इन दैट रूम, बट सेल्फ आइसोलेट एंड मॉनिटर योरसेल्फ. आई वुड लव अगर कोई एक चार्ट बना ले, वो चार्ट बना ले जिस चार्ट में वो एक टेम्परेचर डाल दे. तो सबसे पहले तारीख डाले कि ये मेरा डे 1 है,
बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो दिन के हिसाब से भी होता है, उसमें इसका भी इंपॉर्टेंट है कि वो किस दिन से सिम्टम शुरू हुए। तो पहले अपनी तारीख डाल ले, कौन सा डे है, फिर उसके बाद अपना टेम्परेचर डाल दे, पल्स डाल ले, ऑक्सीजन डाल दे, ये चीजें डाल ले और उसको टाइम डाल दे, और टाइम से उसको 4-4 घंटे पे मॉनिटर करने शुरू करे, ताकि एक पैटर्न पता चले कि उसका पैटर्न क्या है। तो इसलिए इसको एक पेपर बेस्ड करे, चार्ट बेस्ड करे, इट इज वेरी हेल्पफुल ऑलवेज। Okay, okay. And also, if a pregnant woman catches only a normal cough and regular cough and cold, also she needs to watch herself and isolate for a few days. Is it even for a regular cough and cold? Yeah. The reason is that because in the current scenario, it's a very good point, Pooja, you have mentioned, because nowadays we forgot rest of the disease ना, हमारे दिमाग में कुछ आते ही नहीं, हम सोचते सब कुछ कोविड ही हो गया है, तो बहुत हो गया है। तो लेकिन अगर नॉर्मल कफ और कोल्ड भी है ना, तो भी आपको मान के तो अभी चलना है, क्योंकि इसको तो रूल आउट करना ही करना है। तो इसलिए आप उस दूसरा कफ एंड कोल्ड है तो उसके लिए भी कोई मेडिसिन तो नहीं है। एंटीबायोटिक का खासकर इंडिया में जो एक मैं बोलूंगी कि बहुत ही गलत होता है कि एंटीबायोटिक मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो होता है ना वो, और ये जो कॉमन कोल्ड एंड कफ है या कोविड, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट ना एंटीवायरल होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी फ्लू के लिए कोई भी है बनी नहीं अभी तक के, कुछ इफेक्ट करती नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप ना सिर्फ पैरासिटामोल अपने पास रखें, आपके लिए सिर्फ पैरासिटामोल और हाइड्रेशन एंड विटामिन सी, विटामिन डी, ये चीजें हैं, और बस मॉनिटर करें। आप सिर्फ मॉनिटर करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको दवा की जरूरत नहीं है। फ्लू, चाहे वो नॉर्मल फ्लू हो या नॉर्मल कोल्ड एंड कफ हो, वो अपने आप में यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है, 3-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजॉल्व भी हो गया इन करंट कोविड, कंसीडर योरसेल्फ एज अ कोविड इफ यू हैव नॉट गेट टेस्टेड, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आप भले ही ठीक हो जाए 5 दिन बाद, जो कि इसका यूजुअली साइकिल ब्रेक का दिन होता है, 5 दिन बाद, तो आप ये फैला सकती हैं अभी। इसलिए आप अपने आप को मान के, just for the other safety, keep yourself self-isolated. But don't be bedridden, okay? Bed rest की कोई जरूरत नहीं है. That's most important thing, especially in pregnancy. No bed rest. Do you suggest plan for baby this time, this whole period? Do you suggest to have it? Okay, so it's a choice. It's basically choice. So I would suggest in that situation that if they are not vaccinated, so first they should get vaccinated, the most important thing. Okay, तो सबसे पहली बात तो है कि if they are planning, so they should get vaccinated, ताकि एक कम से कम ये तो सुकून रहे कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो थोड़ा सा कम होगा। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन नहीं होगा, पर थोड़ा कम होगा। That can give them the time to maybe we just cross the peak and we can go ahead. If they have a stress, because now the 2 factors is there. One, एक तो ये है कि यार हमें बच्चा नहीं हो रहा, उसका स्ट्रेस। दूसरा, कोविड में हम बच्चा करें, तो उसका क्या होगा? तो ये स्ट्रेस, 2 स्ट्रेस साथ में चलते हैं। तो बेसिकली इट्स द कपल चॉइस विच स्ट्रेस दे कैन मैनेज, यू नो। अगर उनको लगता है कि नहीं हम तब करेंगे जब ये चीजें सेटल हो जाए, fair enough, they can go ahead. If they are thinking no, we can maintain the social distancing, we can follow the hand hygiene and mask and can go ahead with the for हमारे consumption के लिए, they can go ahead, because चीजें एकदम रुकती नहीं है। Here as a fertility specialist here in the UK, we didn't stop, you know, हमने रोका नहीं है। We are keep on doing the fertility services. सिर्फ 1 महीने के लिए रुकी थी, and which increases a lot of mental stress to the couple, especially you know because fertility में क्या होता है ना, stress बहुत ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा उनको stress होने लगा था। तो we start, but we have given them advice that you need to understand that after that the whole 9 months you need to be very careful. So they have to balance between all these things, what they want, how much they can cope up.